Today I will talk about 3 temples, ancient temples, which are today in Pakistan since our independence and partition in 1947. These are 2 of them out of the 3 are Shakti Peethas. Total number of Shakti Peethas being 51. Out of these 51 Shakti Peethas, 12 are outside India. Some are in Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Bhutan and Tibet. Out of these 12, 2 are in Pakistan. One of these 2 Shakti Peethas is called Hinglaj Mata. It is situated in a town called Hinglaj, which is a coastal town in Balochistan of Pakistan. And it is in the middle of Hingloj National Park. The temple is in a mountain cavern on the banks of river Hingol. It is one of the World Heritage listed temples and protected by UNESCO. Here Mata's top of her head fell here, part of the top of her head, the Brahmarandra, almost where our Sahasrara Chakra is. The temple is visited by many Hindus and sometimes even other natives of Pakistan. It is a very popular temple. It has its mention in many Puranas and the Tantra texts. After this is our second temple, which is the second Shakti Peetha in Pakistan. It's called Shiva Har Kare. Shiva is also a name of Parvati in Shiv Puran. Here, this temple is situated in Balochistan again, but near Karachi and in an arid desert setting. The temple is not very well kept and the road to it is not so easy. But here fell Ma's third eye, that is near the Agnya Chakra and between the 2 eyebrows. That third eye fell here. Again, people from all over come to visit this temple, and despite it not being kept well and being in isolation, it still shines with the divine grace and lightens up the Balochistan desert. It again has its mention in many Puranas. The third temple, which is not a Shakti Peeth but is of great prominence in Pakistan and is near the POK line, is the Sharda Peeth. As the name suggests, it is a Saraswati temple, and there was a huge university around it which was of great glory during the 12th to 16th CE. Here people came from far away. Scholars would come to access its library and the texts within. But today the ruins of the temple stand but speak of its old glory. अत्याचारी और निर्दयी था। माता ने इस असुर का वध एक गुफा में किया और वही स्थान हिंगलाज शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। मरते समय राजा हिंगोल ने मां से निवेदन भी किया कि इस भूमि को उसके नाम से जाना जाए। माता ने स्वीकार किया और तब सबसे रोमांचक और रहस्यमय विशेषता है मिट्टी का ज्वालामुखी, जिसे बाबा चंद्रगुप्त के नाम से जाना जाता है। ये कोई आम वोल्केनो नहीं है दोस्तों, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए एक मोक्ष का माध्यम है। भक्त इस ज्वालामुखी के क्रेटर में नारियल, सुपारी, दाल और पवित्र रोटियां अर्पित करते हैं। इस परंपरा के पीछे मान्यता है कि बिना बाबा चंद्रगुप्त को श्रद्धांजलि दिए माता के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में होने के बावजूद हर साल अप्रैल के महीने में 2.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री इस कठिन यात्रा पर निकलते हैं। ये यात्रा बस एक ट्रिप नहीं है, ये है आत्मा को शुद्ध करने का एक यज्ञ। यात्रा की शुरुआत होती है कराची के नानी मंदिर से। वहां से हजारों भक्त मां के द्वार की ओर प्रस्थान करते हैं। कई श्रद्धालु इस यात्रा के दौरान लाल ध्वज, लाल स्कार्फ और शक्ति पीठों से जुड़े विशेष वस्त्र भी पहनते हैं, के पवित्र रक्त और ऊर्जा का प्रतीक है। इसके अलावा हिंगलाज क्षेत्र में 7 पवित्र कुंड भी मौजूद हैं, जहां भक्त स्नान करके आत्मिक शुद्धि प्राप्त करते हैं, जिनके नाम हैं अनिल कुंड, ब्रह्म कुंड, कीरक कुंड, काली कुंड, रत्न कुंड, सूर्य कुंड, चंद्र कुंड। ये कुंड सिर्फ जल के नहीं हैं। जब अयोध्या लौटे तो ऋषियों ने उन्हें सुझाव दिया कि उन्हें अपने युद्ध के पापों से मुक्ति के लिए हिंगलाज माता की यात्रा करनी चाहिए। तब भगवान शिव की गहराई का प्रतीक है।
क्या आप जानते दोस्तों कि स्वयं प्रभु श्री राम ने भी हिंगलाज यात्रा की थी? जी हाँ, ग्रंथों के मुताबिक रावण का वध करने के बाद श्री राम मां के चरणों में अपने कर्मों का प्रायश्चित किया। दोस्तों, इस मंदिर की एक और खास बात यह है कि यहाँ के स्थानीय मुस्लिम भी हिंगलाज मंदिर में मत्था टेकते हैं। विशेषकर जिक्री मुसलमान तो हिंगलाज माता को अपनी नानी के रूप में ही पूजते हैं। सूफी संत शाह अब्दुल लतीफ बिट्टाई ने भी हिंगलाज की यात्रा की थी और माता को श्रद्धा से दूध भी चढ़ाया था। उन्होंने अपनी सूफी राग रामकाली में इस तीर्थ की प्रशंसा की है। तो दोस्तों, ये थी भारत की सरहद के उस पार history. It's a living proof, the civilizational thread, one that stretches across the borders into Iran, where it forms second largest province. It is not defined by language alone or earlier context to how urbanism, technology and cultural systems evolved into the Indian construction, which is basically the earlier stage to the burnt bricks. What you're seeing here is an actual image of the walls from Mehergarh, made from as durable as the burnt. Emphasized here is the Kal Balochistan. We are talking about one of the oldest centers of settled life anywhere in the world. The symbol is so sacred that in ancient Bharat it appears in the Vedic. They continue to hold even today. What is astonishing is the continuity of the functional design. A water pot shaped like humped bull found in Mehergarh mirrors the Nandi-shaped copper vessels used in our temples today, where water comes out of the snout for ritualistic offerings. Icon I placed, it's trade hubs of Mesopotamia and the Arabian Peninsula. The Shakti Peetham of Hinglaj Mata has been a witness to the ever made of terracotta excavated in Indus Valley. So it clearly establishes that I could not get an online reference of this, otherwise I would have shown you in color in Balochistan. It is also the place where Parashurama finally stopped his killing spree of Kshatriyas. At that point, when he was on to exterminate all the towards Parashurama, that they will give up their royalty and follow an ascetic life of sorts. This also is deeply associated with the same region, Balochistan. So to summarize, the region of Balochistan is not just a rugged stretch of land on the map. It is a living chronicle of civilizations that have risen and fallen over 9,000 years. Not far from Mehergarh stands Hinglaj Mata Shakti Peetham, as we saw, a site deeply spiritual and historical. Inventions in human history is the wheel. Our social textbooks teach that the wheel was invented. திராவிட மொழிகள் அப்படின்னு சொன்னாலே தென்னிந்திய மொழிகளான தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் இது மட்டும்தான் அப்படின்னு ஒரு பிம்பம் பெரும்பாலா இருக்கு. ஆனா தெற்கு திராவிடம், நடு திராவிடம், வடக்கு திராவிட மொழிகள்னு 70க்கும் மேற்பட்ட திராவிட மொழிகள் இந்தியாவில் இருக்கு. இதுல குறிப்பாக பாகிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தான் எல்லையில பிரஹுயி அப்படிங்கிற திராவிட மொழி இன்னமும் பேசப்பட்டு வருகிறது. தமிழ் மொழி குடும்பத்தில் இருக்க இந்த பிரஹுயி மொழி எப்படி 2000 கிலோமீட்டர் தள்ளி பாகிஸ்தானின் பலுச்சிஸ்தான் பகுதியில் பேசப்படுது அப்படின்ற கேள்வி இயல்பாவே எழுது. இதுக்கு மொழி அறிஞர்கள் இரண்டு விதமாக பதில் சொல்றாங்க. ஒன்னு, சுமார் 1000 வருடங்களுக்கு முன்பு தான் வட கர்நாடகா பகுதிகளில் சேர்ந்த பிரஹுயி மொழி பேசுற மக்கள் பாகிஸ்தான் வரை போனாங்க அப்படின்னு சில அறிஞர்கள் சொல்றாங்க. இது உண்மையா இருந்துச்சுன்னா தற்பொழுது பாகிஸ்தான்ல பிரஹுயி பேசுற மக்களுடைய மரபணுவும் வட கர்நாடகாவில் இப்ப வசிக்கும் மக்களுடைய மரபணுவும் ஒரே மாதிரியா இருக்கணும். ஆனா மாறாக பிரஹுயி பேசுற மக்களோட மரபணு இயல்பாக பாகிஸ்தான்ல வசிக்கிற மத்த மக்களோட மரபணு மாதிரி தான் இருக்கணும். கர்நாடகா பகுதிகளிலோ மத்த தென்னிந்திய மக்களோட மரபணுவும் இவங்களோட மரபணுவும் மிகவும் வேறுபடுதுன்னு மரபணுவியல் அறிஞர்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இன்னும் ஒரு சில அறிஞர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, 6000 வருடங்களுக்கு முன்பு தமிழர்கள் சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தை தோற்றுவித்தாங்கனும், பல நூற்றாண்டுகளா தமிழ் மொழி பேசும் மக்கள் இந்தியா முழுக்க பரவினாங்க. ஆனா பிரஹுயி மொழி பேசும் மக்கள் மட்டும் அந்த சிந்து சமவெளி பகுதிகளிலே தங்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. நாளடைவில் இந்த தமிழை அடிப்படையாக கொண்ட திராவிட மொழி பலோச்சி மொழி வார்த்தைகளையும் பல பெர்சிய மற்றும் அரபிய மொழி வார்த்தைகளையும் உள்ளடக்கி பிரஹுயி மொழியா உருவெடுத்தது அப்படின்னு அறிஞர்கள் சொல்றாங்க. பாகிஸ்தான் பகுதிகளுக்கு பின்னாக வந்த ஆரியர்களோட இந்த பிரஹுயி மொழி பேசும் மக்கள் 6000 வருடமா கலந்ததுனால தற்பொழுது திராவிட மொழிகள் பேசுற மக்களுடைய மரபணுவும் இவங்களுடைய மரபணுவும் ஒத்துப்போகல அப்படின்னு இந்த அறிஞர்கள் சொல்றாங்க. மொழியியல் மற்றும் மரபணுவியல் அறிஞர்கள் சொல்ற இந்த கூத்து தான் வாத பொருத்தமுடையதா இருந்தாலும் நேரடி ஆதாரங்கள் நமக்கு இன்னும் கிடைக்கப்பெறல. சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தில் इस महिला से पूरा पाकिस्तान डरता है। महरंग बलूच नाम की यह महिला बलूचिस्तान जगह की है। इस महिला का मानना है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर अवैध कब्जा किया है और ये महिला पाकिस्तान से अपने देश की आजादी की लड़ाई लड़ रही है। महरंग बलूच के आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इन्होंने हिंसा का सहारा नहीं लिया है। यह गांधी के राह चलने वाली महिला है। इनके पिता को 2009 में पाकिस्तानी सेना द्वारा मार दिया गया।
इसके बाद महारंग बलूच ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया और आज यह हालत है कि बलूच आंदोलन की नेता के तौर पर महारंग बलूच को पूरी दुनिया जानती है। इस महिला से पूरा पाकिस्तान पैरां विच हील पाई अते फुटदी साडा दिल लुटदी ना किते जावे टुटनी डोले खांदा लगनी ओ पतासे जहे बुल्ला उत्ते पोपी लालिया तू लोंदी फिरे बस के मराठों ने जिस तरह हमारे 5000 सिपाहियों के सिर कलम किए थे उसी तरह हमारे फतेह का जश्न भी हम मराठों का कत्लेआम करके मनाएंगे। म्हणजे आपण आपल्या घरी कधीच जाऊ शकणार नाही का? आखिर में गुलामी है, मरना तो पडेगा। ज्याच्या खांद्यावर हा हिंदवी स्वराज्याचा भगवा आहे तो कधी गुलामीत राहणार नाही आणि कुणाला राहू बी देणार नाही। वाह, क्या खुशबू है हिंदुस्तान की। ज्या मातीत साधं गवताचं पातं उगून येत नाही अशा मातीत जन्म घेतलायस तू। आज तुझी नाही आम्ही गुलामीची नाळ कापली असं समज। खुद अपने घुटनों के बल झुकोगे या खड़े खड़े काट दो? एक वेळ अंगातलं रगात संपल पण मनगडातली रग नाही संपणार अंबाजीची। जर वेळ पडली ना तर चुली मोर्चा फुकणीची पण तलवार करू। गुलामीची लाकडं पेटवून स्वराज्यासाठी होळी साजरी करायची आता आणि त्या पेटलेल्या होळीतच जाफर अली नावाचा रावण जाळायचा। पानिपतातली जखम ठिणगी होऊन जणू वणवा पेटला या भर वाळवंटात। मराठी मातीतले पोरींना इतक्या हलक्यात घ्यायचं नाही सुभेदार। विश्वास और हथियार दोनों पानीपत के जंग में तुम खो चुके हो। बचा क्या है तुम लोगों के पास? ही सफेद रेती गनिमाच्या रक्तानं इतकी लाल करू की येणाऱ्या पिढ्या ध्यानात ठेवतील की मराठ्यांच्या अवलादी इथे येऊन गेल्या। ये कहानी है गुलामों तक। ये कहानी है बलूचिस्तान में रहने वाले मराठा कम्युनिटी की। 1750s में मराठा पावर पूरे उत्तर भारत में फैल रही थी और उसी समय अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली की नजर भी दिल्ली के तख्त पर थी और उसी समय पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई जिसमें मराठों की हार हुई। कुछ मराठे भागने में सफल जरूर हुए लेकिन हजारों सैनिकों को, औरतों को और बच्चों को अफगानों ने बंदी बना लिया। अहमद शाह अब्दाली उन्हें अफगानिस्तान गुलाम बना के लेके जाने वाला था लेकिन रास्ते में पड़ता है आज का बलूचिस्तान और वहां के राजा ने अहमद शाह अब्दाली को मराठों से लड़ने के लिए मदद की थी। इसलिए अब्दाली ने उन सारे गुलामों को बलूचिस्तान के राजा को दे दिया। इन मराठों के शुरुआती दिन काफी कठिन थे। उनसे जबरन इस्लाम कबूला गया, उनको अलग अलग ट्राइब्स में बांटा गया लेकिन उस अनजान जगह पे उनके पास कुछ था तो था मराठी कल्चर और मराठी भाषा। आज भी बलूचिस्तान के इस मराठा कम्युनिटी में मराठी कल्चर के कुछ अंश बाकी है जैसे कि शादी से पहले हल्दी सेरेमनी रखना, शादी के बाद बहू के घर आने से पहले राइस बोल को क्रॉस करना। इस मराठा कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी वहां है जिसका नाम है मराठा कौमी इत्तेहाद। पिछले कुछ जनरेशन से इस कम्युनिटी ने अपनी कंडीशंस को सुधारा है और वो अलग अलग फील्ड्स में भी काम करने लग गए हैं इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स। एक ऐसा युद्ध जिसकी वजह से हजारों लोगों को पीढ़ियों तक गुलामी का दर्द सहना पड़ा। इसलिए पानीपत की तीसरी लड़ाई को मराठा इतिहास की एक गहरी जख्म माना। मेरा नाम राजकुमार है, कोयटा हिंदू पंचायत का सदर हूँ और कोयटा का रिहायशी हूँ और मैं गारमेंट्स का कारोबार करता हूँ। हमारे वालिदैन जो है ना वो दिल्ली है और मराठा एम्पायर जो भारत ही नहीं लेकिन दुनिया के सबसे महान एम्पायर्स में से एक आता है। उनके लिए
उस ग्रेट, तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अर्ली 19th सेंचुरी की, तो ब्रिटिश एक्सपेंशन जो है इंडिया में कंटिन्यूसली बढ़ रहा था और मराठास जो है वो ब्रिटिशर्स को यहाँ पर चैलेंज दे रहे थे, क्योंकि जो रीजनल ऑटोनॉमी है मराठा की वजह से ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से यहाँ पर कैप्चर नहीं कर पा रहे थे। एक वक्त तो ऐसा था कि लगभग 1/3 पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट मराठास ने अपने अंडर रखा था। इसका इन्फ्लुएंस हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि अगर हम लोग 1960 से कहानी की शुरुआत करें, जब बॉम्बे प्रोविंस एक्ट 1960 आया था और बॉम्बे प्रोविंस को दो अलग अलग पार्ट्स में विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात दो अलग स्टेट बने थे, 1960 से लेकर किया था। ये पर्टिकुलर चीज भी इस फिल्म में बताई गई और ये बताया गया कि जो मराठी डायस्पोरा बलूचिस्तान में, क्वेटा में, पाकिस्तान में आज भी है, किस तरीके से उन्होंने अपना सर्वाइवल किया था। तो अगर हम लोग इतिहास से, और ये बताया गया कि जो मराठी डायस्पोरा बलूचिस्तान में, क्वेटा में, पाकिस्तान में आज भी है, किस तरीके से उन्होंने अपना सर्वाइवल किया था। तो अगर हम लोग इतिहास से अपनी कहानी शुरू करें, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर ये देखते हैं कि मुगल एम्पायर जब बेसिकली डिक्लाइन हो चुका था, लगभग खत्म हो चुका था, तो मराठा एम्पायर ने नदर्न इंडिया को कैप्चर करने का जो प्रोसेस है दोबारा से शुरू किया और अहमद शाह दुर्रानी, जिन्होंने अफगानिस्तान में मराठा एम्पायर बढ़ा लेते हैं, पानीपत था 1761 का, वो तो बेसिकली यहां पर हार गए और उसकी वजह से जब मराठा एम्पायर कमजोर होता हुआ दिखता है तो ब्रिटिशर्स जो है अपनी ताकत काफी हद तक बढ़ा लेते हैं। एक तौर पर मराठा एम्पायर जीत चुका हुआ, पानीपत हार गए, तो उसके बाद लेकिन जब मराठा ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हार जाते हैं, उसके बाद कई मराठाओं को यहां पर बंदी बना लिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है और इस बात के लिए किया, और वहां पर बेसिकली इन्होंने अपना जो कल्चर है, जो अपना ट्रेडिशन है, वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। और इस इंसिडेंट के 200 साल बाद भी जब भी वहां के जो डायस्पोरा मराठास थे पाकिस्तान क्वेटा के, वो अपनी वेडिंग सेरेमनी में हल्दी की सेरेमनी करते थे, जैसे आज भी हम लोग हिंदू कम्युनिटी में इंडिया में करते हैं, कान छिदवाने की यानी ईयर पियर्सिंग की जो प्रथा है वो उन्होंने वहां पर भी पूरी तरीके से रखी। इसके अलावा मराठा एम्पायर जब क्वेटा जाते हैं तो वहां पे अलग अलग बलोच ट्राइब के नाम पर डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें हमें बुक्की ट्राइब, मर्री ट्राइब और गुरचानी ट्राइब जैसे अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। और यहां पर सिर्फ 200 सालों की बात नहीं, लेकिन और जब इन मराठाओं को बंदी बनाकर क्वेटा ले जाया गया तो बलूचिस्तान में यानी कि क्वेटा में इन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ाई, वहां की जो फार्मिंग टेक्निक्स हैं उनमें करना यहां पर शुरू कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे मराठा क्वेमी इतिहाद जो बेसिकली पाकिस्तान के वहां पे मराठा हैं, वो बेसिकली यहां पर एक्सप्रेस करते हैं इस चीज को कि मराठा का जो पूरा का पूरा वहां पे कल्चर है अभी भी प्रिजर्व्ड है। यहां भले ही थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद हमें टूटता हुआ दिखाई देता है, अलग अलग रीजन में रिफ्यूजीज के नाम पर, ट्राइब्स के नाम, उसको कभी सैक्रिफाइस नहीं किया, अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन, अपनी एथनिसिटी। और बात यहां पर यह है कि बलूचिस्तान और क्वेटा में इस तरीके से उन्होंने बेसिकली खुद को शामिल किया कि हार्श कंडीशन में होने के बावजूद लोकल ट्राइब्स को शामिल किया और वहां के जो लोकल इस्लामिक रूलर्स थे उनको हराया। आपके लिए, मेरे लिए, हमारी आज की जनरेशन और आने वाली जनरेशन के लिए और स्पेशली उन मराठा बच्चों के लिए ये इतिहास जानना बहुत जरूरी है। तो और युद्ध हुआ था जो क्वेटा में बलूचिस्तान में हुआ था और मराठा एम्पायर ने लोकल ट्राइब्स को शामिल करके उस युद्ध को जीता था। और आज भी उसका सबूत हमें यहां पर देखने को मिलता है कि बलूचिस्तान में और क्वेटा में अभी भी जो मराठा कल्चर है उसको यहां पर उन लोकल ट्राइब्स के द्वारा प्रिजर्व किया जाए। ये कहा शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन आपके से बनाए रखी तो उसके लिए सिखों के हौसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हो सकता है कि कल ये हमारी सल्तनत के लिए नासूर बन जाएं। जब आपकी और निधान बने अत हिरन में तब जूझ मरो। खालसा जी हुण समा आ गया, वैरी ना लड़न दा ते शहीदियां पाउण दा। वक्त ज़ाया ना किया जाए, यलगार हो।
शाह अब्दाली दियां फौजां घेरा तोड़ के अंदर दाखिल हो जाती, कत्ले आम शुरू हो जाता। इसके बाद सिखों का रिश्ता नाबूद होना यकीनन ते अखीर ये लड़ाई पिंड कुतबा बामणियां कोल खत्म होती है। अहमद शाह अब्दाली दी खुशी बहुत देर रह न सकी। साल 1.5 साल बाद अहमद शाह अब्दाली नूं चनां दे उरले कंडे ते एक घमासान लड़ाई विच हार दित्ती। सन 1764 विच अब्दाली अपनियां फौजां लैके एक बार फिर पंजाब आउंदा है, पर ਸਿੰਘਾਂ दे डर तो दिन विच ही 2-4 कोहां तो वध ना चल सकिया। आखिर वो पंजाब छड़ के चला गया ते सन 1765 दी वसाखी तो पिछों ਸਿੰਘਾਂ ने लाहौर ते कब्जा कर लिया ते उत्थों अपना सिक्का जारी करके बाकी दुनिया नूं ये दस दिता कि राज पंजाब विच कायम हो चुका है। इस तरह आजादी दा ये संघर्ष सिरे चढ़िया। Taxila, now near Islamabad, was a nexus of learning, attracting students from as far as China, Greece, and Sri Lanka under the Mauryan and later Kushan rule. The Dharmarajika Stupa, 3rd century BCE. दोस्तों, जब एक सीनियर इंडियन जर्नलिस्ट कुलदीप नायर ने इंडो पाक बॉर्डर कमीशन के हेड साइरिल रेडक्लिफ से इंडो पाक बॉर्डर पे बात करी तो रेडक्लिफ ने एक चौंकाने वाला बयान दिया, और वो ये कि मैंने आपको लगभग लाहौर दे ही दिया था। दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के पहले सबको पता था कि लाहौर भारत को मिलने वाला है, क्योंकि 1941 के सेंसस के हिसाब से लाहौर में हिंदू और सिख की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 40% थी, पर प्रॉपर्टी और इकोनॉमी में उनकी ओनरशिप 80% तक थी। लाहौर बंटवारे के पहले डाइवर्सिटी का प्रतीक हुआ करता था और ये शहर मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारों से भरा रहता था। पर सवाल यह है कि फिर लाहौर पाकिस्तान में गया कैसे? रेडक्लिफ ने एक अजीब सा जवाब देते हुए कुलदीप नायर को कहा कि पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर नहीं था। कोलकाता तो मैंने इंडिया को दे ही दिया था, तो सोचा लाहौर पाकिस्तान को दे दूं। अब आप खुद सोचिए कि लाखों लोगों की जिंदगियां बदल देने वाले इस डिसीजन के पीछे इतना इमेच्योर रीजन कैसे हो सकता है? इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। डर है कि ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो खैबर पख्तूनवा रीजन है, यहाँ पर जो पाश्तून पॉपुलेशन है, उनके अंदर एक सपना बुनता आ रहा है इतने सालों से। वो क्या है कि हम पाश्तूनिस्तान चाहते हैं या ग्रेटर अफगानिस्तान का भाग बनना चाहते हैं। सिंधी समुदाय इंडिया में शरणार्थी यानी कि रेफ्यूजी बनकर आया था। आज सिंधी लगभग हर क्षेत्र में आगे हैं। इनके योगदान की हर कोई सराहना करता है। आइए जानते हैं सिंधी कम्युनिटी के बारे में कुछ मजेदार चीजें। इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद हिंदू इंडिया आ रहे थे और मुस्लिम पाकिस्तान। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू मुस्लिम के बीच बेहद भाईचारा था, लेकिन बढ़ती असुरक्षा के कारण करीब 8 लाख सिंधी हिंदुओं ने पाकिस्तान छोड़कर इंडिया में शरण लेने का कड़ा फैसला लिया। पूरे इंडिया में आज 25 लाख से ज्यादा सिंधी हैं। भारत में सिंधियों की आबादी सबसे ज्यादा मुंबई के उल्लासनगर एरिया में है। सिंधी भाषा को भारत सरकार ने 1967 में 15वीं ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित की थी। ज्यादातर सिंधी हिंदू हैं, लेकिन कुछ सिंधी सिख धर्म के सिद्धांतों को भी मानते हैं। इन्हें सहजधारी कहते हैं। सिंधियों का न्यू ईयर यानी कि चेटी चंड सबसे बड़ा त्योहार होता है। ये त्योहार भगवान झूलेलाल के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जिन्हें वरुण देव का अवतार मानते हैं। इस दिन सिंधी पानी को पूजते हैं। चेटी चंड के अलावा अक्षय तृतीया और तीजरी के अवसर पर भी काफी जश्न मनाए जाते हैं। ज्यादातर सिंधियों का सरनेम ANI से एंड होता है, जिसका अर्थ होता है वंशज। ये सरनेम्स मोस्टली पूर्वजों के नाम से जुड़े होते हैं, जैसे गिडुमल के फैमिली का गिडवानी, मेहरचंद का मेहरचंदानी। एक चीज ध्यान में रखने जैसी ये है कि कुछ सिंधी सरनेम्स JA से भी एंड होते हैं, जैसे आहूजा और राहेजा। भारत में सिंधियों ने लगभग हर फील्ड में नाम कमाया है, जैसे राम जेठमलानी
इंडिया के नंबर 1 लॉयर, पंकज अडवाणी, वर्ल्ड फेमस बिलियर्ड्स और स्नूकर प्लेयर, निरंजन और सुरेंद्र हिरानंदानी, रियल एस्टेट टाइकून्स, रणवीर सिंह भावनानी, बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में से एक। अपने मातृभूमि की तड़प शायद कुछ सिंधियों को हुई होगी, बट उन्होंने कभी इस बात को बाधारूप नहीं बनने दिया। जब भारत में भाषा के आधार पर नए नए राज्य बनाए जा रहे थे, इन्होंने कभी अलग राज्य की मांग या जिद नहीं की। जहां भी गए सबके साथ घुल मिल गए। सभी सिंधियों को टाइम्स ऑफ इंडिया का सलाम। तो दोस्तों, ये थी कुछ मजेदार बातें सिंधी कम्युनिटी के बारे में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद। India in details. A new drama has started because of the movie Dhurandhar, and the impact can be seen in Pakistan. In particular, the movie has probably upset some people who are related to or from the Balochistan region. For a long time, some Baloch activists have tried hard to show that they are friends of India and Hindus, while expressing their animosity or anger towards the Pakistani government and the Pakistani army. And now they are disappointed just because of a movie. But in the first place, how sincere and genuine are the claims of those Balochistani Muslims and others who present themselves as well-wishers and supporters of India and Hindus? Well, not that long ago, this account on X, Mir Yar Baloch, had even claimed independence. Take a look. We request India to allow Balochistan's official office and embassy in Delhi. We also ask the United Nations to recognize the independence of the Democratic Republic of Balochistan. That was posted in May. But now, in December 2025, the same account, Mir Yar Baloch, has posted this. Take a look. Dhurandhar movie disappointed Balochistan's patriotic people. And read this. Unfortunately, the movie portrayed the Balochistan and India relations in a negative way. And read this claim. Baloch are not religiously motivated and they never chant Islamic slogan of Allahu Akbar. Well, these seem to be big claims. And read this. Mir Yar Baloch also mentions that the movie Dhurandhar is poorly researched on Baloch history, Balochistan freedom movement, Baloch culture, traditions. And of course, later, Mir Yar Baloch posted this as well. But I want to ask this. Is Mir Yar Baloch really into preserving or protecting real Baloch culture and genuine Baloch independence? Well, I will try to explore all that. But before that, let's explore the ugly side of Balochistan and how the Islamized Baloch people have failed many times when it comes to protecting the numerous Hindus belonging to Balochistan. Take a look. This is a report from the Human Rights Commission of Pakistan. Read this here. About a fifth of the Hindu population had migrated from Balochistan. Hindus abducted in Balochistan. In Mastung, which is in the Balochistan province, as mentioned here, 35% of the Hindu population had left the district. And in relation to the general elections in 2008, as described here, smugglers, criminals and mullahs had benefited from the vacuum. So yes, the bottom line is that Baloch people who are Islamized or religiously colonized have failed to protect many Hindus from Islamists. And it is not just the Balochistan region. That is the story of Pakistan. Now, this is a 2024 report from the Human Rights Commission of Pakistan. Read this. Forced conversions of Hindu girls. Hindus are forced to run away from Pakistan. Read all this. Kidnappings for ransom, coerced marriages, and more. And in December 2025 itself, a popular Pakistani media outlet has reported that Pakistan has 1,285 Hindu worship sites and 532 gurudwaras, but only 37 are currently functional. If these numbers are true, this is absolutely shocking. So is Mir Yar Baloch really into real Baloch cultures? Is Mir Yar Baloch really into genuine Baloch independence? Because in a deeper sense, freedom for Balochistanis could actually mean freedom from Islamic expansionism, freedom from what is seen as Islamic colonialism, and the revival of Baloch pre-Islamic spiritual traditions. Yes, that freedom can also be about freedom from global conquest-seeking religious forces. If those Baloch activists are truly against colonialism, then why do they not return properly to their pre-Islamic roots? Why continue to remain surrendered to any foreign, monopolistic, totalitarian religion that strictly demands exclusivity? Otherwise, it can be seen as their geopolitical greed or an agenda. Yes, the enemy's enemy can be your friend.
Is that why they call India a friend? The bitter truth is that they have experimented enough with their newer religious system in their part of the world. Has that given them peace? Then why is there no proper peace in Pakistan? Why so much violence? Why are Muslims fighting Muslims? Why are Muslims demeaning or demonizing fellow Muslims by calling them kafirs? If these Muslims cannot treat their own people well, how can they treat Hindus or others properly? Dear Baluch activists, if you do not have genuine respect for your own pre-Islamic roots and identity, how can you genuinely respect others? It is not too late. Consider embracing your pre-Islamic roots. Show your sincerity. It is about your right to pre-Islamic cultural self-determination. Of course, a movie will not change the trajectory of relations between India and the Baluch people, so the movie alone cannot put Baluchistan against India. As far as the movie is concerned, I haven't watched it yet and have seen only a few clips. But showing the bad guys in certain ways in any film can lead some audience members to admire the style or lifestyle of the character. One cannot overly glorify a terrorist and his lifestyle, even if it is presented in a format meant for cinematic entertainment, which is intended to entertain rather than serve as a documentary or a research paper. And please, if you like the performance of an Indian actor in Indian cinema, stop using terms like Oscar-worthy performance, etc. Because the truth is that many Western awards, including the Oscars and the Western-centric narrative, deserve the dustbin of history. I have explained that in this video. But before I sign off, I would like to ask this to Baluch people who are religiously colonized or are victims of Islamic expansionism. Are you happy with what is seen as Islamic colonialism? If yes, then how genuine is your so-called freedom movement? See you again.